Hey everyone, welcome to my channel Let's Bloom. The topic for today's video is extraction of sugar from sugarcane. This video will be helpful for the BSc and MSc student, and this video is under the economic botany or the applied botany. So let's start the video. In this video we will discuss about the various steps involved in the extraction of sugar. The process of extraction of sugar from the sugarcane start just after the harvesting of the crop, and so sugarcane is harvested when it reaches the stage of maturity, as at this time it is with the highest sucrose content. So जो sugarcane है उसकी processing तभी से start हो जाएगी जब शुगर केन की क्रॉप जो है वो रेडी हो जाएगी। जैसे ही उसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, कट कर लिया जाएगा क्रॉप को, तो उसको हम मिल्स में भेज देंगे, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा मिल्स में फॉर देयर फर्दर प्रोसेसिंग एंड एक्सट्रैक्शन। In most tropical countries, the crop is ready to harvest in 14 to 18 months in plant crops and at 12 months in the ratoon or the stubble crop. तो मोस्टली जो क्रॉप है उसका हार्वेस्टिंग पीरियड 14 to 18 मंथ है, बट अगर आप रटून क्रॉप ले रहे हो तो उसका जो हार्वेस्टिंग पीरियड है वो 12 मंथ तक रहता है। After harvesting, the crop is transported to mills where further processing takes place. The white crystalline sugar from the cane is manufactured by the following step. अब next आ जाते हैं steps for the manufacturing of the cane sugar. The first step is the extraction of the juice. In the milling process, the canes are first carried to crushers where they are cut into small pieces. They are then passed through 3 sets of roller. तो जैसे ही जो हार्वेस्टिंग हो जाएगी शुगर केन की, उसके बाद जो शुगर केन है उसको हम मिलिंग प्रोसेस में भेज देंगे। वहाँ पर जो शुगर केन की स्टेम है उसको रोलर्स के थ्रू पास करा जाता है, और मेनली देखा गया है कि 3 सेट ऑफ रोलर्स जो हैं उसके थ्रू शुगर केन की जो स्टेम है उसको पास करा जाता है। पहले फर्स्ट राउंड ऑफ रोलर्स से पास करा जाता है, उसके बाद जो भी लेफ़्ट ओवर मटीरियल रहता है उसको सेकंड राउंड ऑफ रोलर्स के थ्रू भेज दिया जाता है। आफ्टर द फर्स्ट राउंड दे आर पास्ड टू द सेकंड राउंड ऑफ द रोलिंग वेयर दे आर स्प्रेड विद वाटर टू डाइल्यूट वट शुगर रिमेन्स एंड आर पास थ्रू द सेकंड सेट। दीज रोलर्स एक्सर्ट अ लार्ज प्रेशर एंड रिमूव नियरली ऑल द मॉइस्चर। तो जो सेकंड राउंड ऑफ रोलिंग है उसमें जो स्टेम का लेफ़्ट ओवर है उसमें कुछ पानी भी ऐड कर दिया जाता है, ताकि जो शुगर्स है वो कम्प्लीटली शुगर केन की स्टेम से जो भी जूस है वो कम्प्लीटली जूस जो है वो कम्प्लीटली निकाल लिया जाए। द रेजिड्यू इज़ ऑलमोस्ट ड्राई कॉल्ड एज द बैगेज। दिस बैगेज इज़ एज इट इज़ कॉल्ड can be used as a fuel for the mills or as a source of paper or wallboard because of its fibrous nature. The second step in the extraction of sugar from sugarcane is the purification. So the next step is purification. The purification of the sugar involves the separation of the insoluble material and the precipitation for the soluble known sugars. So basically purification further include 3 sub steps. First is the deification, second is the clarification, and the third is the carbonation. So first is deification. The juice is first strained or filtered to remove the solid particles. It is then heated to coagulate the proteins. This process requires the addition of sulfur. Next, the lime is added to neutralize the acid present to prevent the conversion of sugar into less desirable sugars and to precipitate some of its substance in the solution. तो जो deification वाला प्रोसेस है इसमें पहले स्टेप में क्या करा जाता है कि जो जूस है उसको स्ट्रेन आउट कर लिया जाता है, ताकि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं या फिर कोई भी थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल है वो रिमूव कर दिया जाए। उसके बाद जो ये जूस है उसको हीट करा जाता है। हीट क्यों करा जाता है? क्योंकि जो भी जूस है उससे हमें सिर्फ शुगर्स ही चाहिए, और बाकी जितना भी प्रोटीन या फिर बाकी पार्ट है गम्स वाला वो क्या करे, वो कोगुलेट करके उस जूस से बाहर निकाल दिया जाए। तो इसके लिए क्या करा जाता है, सल्फ़र की एडिशन करवाई जाती है, और सल्फ़र की एडिशन के बाद लाइम जो है वो भी ऐड करा जाता है, ताकि जो जूस है उसमें जो एडिशनल एसिड्स वगैरह प्रेजेंट हैं वो भी सारे न्यूट्रलाइज हो जाएं और हमारी शुगर्स ही बचें जो कि हमें चाहिए है।
The next point is the proteins and the colloidal coloring matter are removed from the solution as a thick substance appearing on the surface. तो जैसे ही हमने जूस जो है उसको हीट करा था, हीट करने के बाद एक थिक सब्सटेंस जो है वो सरफेस के ऊपर हमें देखने को मिलता है और उस थिक सब्सटेंस को रिमूव कर दिया जाता है बाय अनदर राउंड ऑफ फिल्ट्रेशन. अनदर राउंड ऑफ फिल्ट्रेशन रिमूव्स द precipitated calcium salt and the thick substance. The second step in the purification is carbonation. In carbonation, the filtered juices is then led to the tanks where it is allowed to come in contact with the carbon dioxide, a process which removes the excess lime as the calcium carbonate and also bring about decomposition of calcium sucrate into soluble black sugar. तो जो कार्बोनेशन वाला स्टेप है उसमें क्या करा जाता है, जो भी डेफिकेशन वाले स्टेप में जो भी जूस मिला था उस जूस को फिल्टर करने के बाद उस जूस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाई जाती है, इसलिए इस स्टेप को बोलते हैं कार्बोनेशन. वो बनना स्टार्ट हो जाएगा और जो कैल्शियम सुक्रेट है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा सॉल्युबल शुगर्स में. अब जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ सल्फाइटेशन. अब सल्फाइटेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग सल्फाइटेशन द फिल्टर्ड कार्बोनेटेड जूस इज ट्रीटेड विद सल्फर डाइऑक्साइड टू कंप्लीट द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ लाइम एंड डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सुक्रेट. आफ्टर सल्फाइटेशन द जूस इज डार्क कलर्ड एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ कंसनट्रेशन. तो सल्फाइटेशन में क्या करा जाता है कि जो कार्बोनेटेड जूस है उसको हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस से ट्रीट करते हैं ताकि फर्दर जो है न्यूट्रलाइजेशन वो कंप्लीट हो जाए और हमें प्योर शुगर्स जो हैं वो मिल जाएं अपने एक्सट्रैक्ट में. अब जो नेक्स्ट स्टेप है, ये लास्ट स्टेप था प्योरीफिकेशन का. तो प्योरीफिकेशन में 3 स्टेप्स हैं, डेफिकेशन, कार्बोनेशन एंड सल्फाइटेशन. नेक्स्ट स्टेप इज़ कंसंट्रेशन. In concentration, the purified juice is now led to evaporators where it is boiled until it become a thick syrup and a mother liquor. So concentration step में क्या करा जाएगा कि जो purified juice है उसको evaporators में डालकर boiling करी जाएगी. boiling तब तक करनी है जब तक वो एक thick syrup ना बना दे, और जैसे ही boiling हो रही होगी कुछ टाइम के बाद एक thick syrup दिखना स्टार्ट हो जाएगा और नीचे एक mother liquor जो है, thin liquid जो है दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा. द रिजल्टिंग स्टिकी मास फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज द मेजिक्वाइट एंड द मदर लिक्विड स्लोली परकुलेट थ्रू द होल्स लीविंग द क्रिस्टल ऑफ द शुगर बिहाइंड. दिस जूस कॉन्स्टिट्यूट द मोलासिस. तो क्या होगा कि बॉइलिंग के बाद एक थिक सिरप बनना स्टार्ट हो जाएगा जिसको यूज़ करके हम आगे शुगर्स के क्रिस्टल्स बनाएंगे, और जो थिन मदर लिक्विड है वो क्या करा जाएगा, वो हम किसी और चीज़ के लिए रीयूज़ कर सकते हैं और उसको हम मोलासिस बोल देते हैं. अब कंसंट्रेशन के बाद जो फाइनल स्टेप है दैट इज़ द रिफाइनिंग. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ रिफाइनिंग. इन रिफाइनिंग द क्रिस्टल्स आर ड्राइड इन अ लार्ज रोटरी ड्रायर इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ हॉट एयर्स. द ड्राइड ग्रैनुलेटेड शुगर passes through the rotary dryers in the presence of a strong current of the hot air. The dried granulated sugar is graded according to size and shipped for export after the packaging. So refining process में क्या करा जाएगा कि जो क्रिस्टल्स बने हैं कंसंट्रेशन के बाद, अब उन क्रिस्टल्स को ड्राई अप करा जाएगा और ड्राई करने के लिए उसको आगे हम एक्सपोर्ट और पैकेजिंग के लिए भेज देंगे. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर फ्रॉम द शुगर केन, जिसमें हमने देखा पहला स्टेप क्या था. फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, हम एक्सट्रैक्शन करवा रहे थे, एक्सट्रैक्शन करवाई. सेकंड स्टेप में हमने प्योरीफिकेशन करवाई. प्योरीफिकेशन फर्दर 3 स्टेप्स में डिवाइडेड था, डेफिकेशन, कार्बोनेशन एंड सल्फाइटेशन. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था दैट इज़ द कंसंट्रेशन एंड द लास्ट स्टेप इज़ द रिफाइनिंग. The next is the flow chart of the whole step of extraction of sugar from the sugar cane. तो in the first step there is a agriculture production जहाँ पर हम sugar cane की crop को raise करेंगे. The second step is the sugar cane harvesting. हम second step में sugar cane जो है उसकी harvesting cutting करना start करेंगे. In the third step there is a transport of the cut sugar cane. Then in the fourth step there is a grinding जहाँ पर हम sugar cane की जो stem है उसको rollers के through pass करवाते हैं. 3 राउंड ऑफ रोलिंग के थ्रू एंड शुगर केन इज़ ग्राउंडेड टू एक्सट्रैक्ट दी जूस. और इसी स्टेप में हमें जो एक लेफ़्ट ओवर मटीरियल मिल जाता है उसको हम बैगेज बोल देते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज़ दी ट्रीटमेंट. अब ट्रीटमेंट स्टेप में हमने देखा था कि जो शुगर केन का जूस है उसकी हम डेफिकेशन, कार्बोनेशन और सल्फाइटेशन कर रहे थे. द नेक्स्ट स्टेप इज़ दी इवेपोरेशन. अब इवेपोरेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है कुकिंग.
जहाँ पर जो क्रिस्टल्स हैं उनको रेडी करा जाता है, और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो भी शुगर्स के क्रिस्टल्स बन गए हैं उनको ड्राइंग के लिए भेजेंगे, और उसके बाद जो शुगर है वो रेडी हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर फ्रॉम दी शुगर केन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।